جاوید اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہے، سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ چیمہ صاحب کی سیاست پہ بھی گہری نظر ہے اور مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ چیمہ صاحب، ایک سادہ سا سوال ہے کہ یہ جو علاقہ ہے گلگت اعلیٰ، یہاں پہ انتخابات ضروری تھے جب نتائج آپ دیکھیں کہ وہ اپنی مرضی کے دینا چاہتے ہیں، وہاں پہ رینجرز ہے، پولیس ہے، تو کیا وجہ انتخابات کرانا کی ضروری تھے؟ جی مبارک صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے آداب۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ملک میں مارشل لا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر ملک کو چلا رہا ہے، یہ پوری دنیا کو پتا ہے۔ مگر وہ ڈکٹیٹر جو ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اس کو آئینی قانونی لیجٹمیسی جو ہے نا وہ ملتی رہے، تاکہ اگر کوئی بات کرے تو میں کہوں عدالتیں بھی ہیں جی، الیکشن کو آیا تھا، یہ ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دھوکے باز ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، میں بڑا مکار ہوں، اور میں دنیا کو جو ہے نا اپنی مکاری سے سب کچھ رابط کر لوں گا۔ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت دنیا جو اس کا ساتھ دے رہی ہے، یا یورپ ساتھ دے رہا ہے، یا امریکہ ساتھ دے رہا ہے، یا برطانیہ ساتھ دے رہا ہے، تو ان کی آپ کو تو چاہتے ہیں، ان کی مجبوریاں نہیں ہیں، ان کو تو وہ تو چاہتے ہیں سارے کہ یہ پاکستان جو ہے نا لولا لگڑا رہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے۔ انہیں اس طرح کے ڈکٹیٹر چاہیے، تو ان کو مل گیا ہے، ان کو ڈکٹیٹر ملا ہوا ہے، اس لیے وہ تو کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس میں پیسہ ضائع کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسہ جائے جہنم میں، ملک جائے جہنم میں، اس کو اقتدار چاہیے، اور اقتدار کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہم بڑے جو ہے نا وہ جمہوریت پسند ہیں، اور ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، چاہے عدلی، چاہے چن کے لوگ سلیکٹ کر کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اپنی پے رول کے اوپر۔ تو یہ صرف ایک دکھاوے کا پروگرام ہے، یعنی دھوکہ ہے اپنے آپ کو بھی اور دنیا کو بھی، مگر وہ سمجھتا ہے کہ اس دھوکے سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایک وقت آئے گا اس فرعون کی پکڑ ہوگی۔ جی اچھا، ویسے تو اگر وہ نہ بھی انتخابات کرواتے صاحب بہادر، ان کو استثنا حاصل ہے، ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ کون پوچھے گا ان کو؟ یہ ذرا اللہ تو ہے چیمہ صاحب، اللہ تو 70 سال سے دیکھ رہا ہے اس ملک کی حالت، مگر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے حالات۔ سوال یہ ہے کہ اس بندے نے کو کس نے پوچھنا تھا ویسے؟ ہاں، وہ اصل میں ہو نا، جنہوں نے چہرے کے اوپر نقاب اوڑے ہوئے ہیں نا، چاہے وہ یورپ ہو یا کمیونٹی یا امریکہ ہو، ایک نقاب انہوں نے بھی اوڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی اپنے نقاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی سوال کرے صحافی پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں، یا ظلم و بربریت کے بارے میں، یا ناانصافی کے بارے میں، تو وہ بھی کہہ سکے کہ دیکھیں جی، آپ کے پاس عدالتیں ہیں، آپ عدالتوں کو طرف رکھیں، الیکشن ہوئے ہیں، اب جیسے بھی ہیں فیصلہ عدالتوں نے کیا ہے، کسی کا مینڈیٹ چھیننا نہ چھیننا، یہ تو سارا کچھ ایک قانونی طور پہ ہو رہا ہے، تو ہم اس میں کیا دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ تو یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے، انہوں نے بھی اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سنو انسانی حقوق صرف ان کے اندر نظر آتے ہیں، جب ان کے ملک کے اندر بات ہو تو پھر انسانی حقوق جاگ جاتے ہیں، جب پاکستان کے اندر بات ہو تو پھر انسانی حقوق تو سو جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے ڈکٹیٹر کو لیجٹمیسی چاہیے، اس طرح یورپ کے اندھے حکمرانوں کو اور امریکہ کے حکمرانوں کو بھی اسی طرح کا نظام چاہیے، اور وہ اسی نظام کو جو ہے نا سہارا دینے کے لیے، صحافیوں کو سوالوں کا جواب دینے کے لیے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو فراڈ کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، اس میں ہمارا ذاتی طور پہ کیا قصور ہے؟ بس ہمارے مقدر ہیں کہ ہم اپنے اس دین اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ہم نام کے مسلمان ہیں، اس لیے ہم جو ہے اس طرح کے ڈکٹیٹر کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر بھی کوئی مسلمانی ہو جی تو 30 کروڑ عوام تھے، چلو کم از کم چند لوگ تو ہوتے، مگر نہیں، اس کا روب و دبدبہ اتنا ہے، فرعون اپنے پورے آب و تاب سے، یزیدیت اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، صرف اسی کا نہیں ہے، مکاری پوری دنیا نے اپنے چہروں کے اوپر نقاب اوڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو اس طرح کے پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ضرورت نہیں تھی الیکشن کی، اس وقت بھی کر سکتا تھا، مگر اس سے دوسروں کے چہرے بھی بے نقاب ہونے۔
जी, मतलब हमारे वहाँ कब इंसानी हकूक जो आप बता रहे सोए हुए हैं वहाँ पे उनको कब होश आएगी या कब जागेंगे वो? नहीं, हमारे देखिए ना, हमारे तो जितने भी सारे ये तंजीमें बनाई हुई हैं, उनको तो फंडिंग होती है ना। उनका तो ये जो जो पैसे देते हैं, कोई सऊदी अरब जो है ना, वो मजहबी तौर पे कुछ मोटे ट्रेड वालों को पैसे देता है, और दूसरे भी यूरोप के अमेरिका के लोग हैं तंजीमों को पैसे देते हैं, तो वो वक्ती तौर पे उनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मौलाना फजल में इस्तेमाल होता है, लब्बैक वाले इस्तेमाल होते हैं, सहाबा वाले इस्तेमाल होते हैं, ये मुसलमानों की तंजीमें इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह इंसानी हकूक की बुनियाद, वो तो इलेक्शन तो उन्होंने भी खोली है, उन्होंने तो खुद अपने तौर पे लोगों को बनाया हुआ है ना कि ये जमात है, ये जमात है, ये तंजीम है। तो वो तंजीमों का भी पाकिस्तान में कोई भी किसी किस्म का कोई राइट नहीं है कानूनी तौर पे। वो तो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जिस तरह हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं, इस तरह वो भी मुसल्लत किए जाते हैं। वो उनके डाउट है, वो क्या बोलेंगे? वो नहीं बोलेंगे। अच्छा, इलेक्शन वहाँ पे चोरी करने का मुकम्मल प्रोग्राम बना हुआ, जाली वोट, वहाँ पे रेंजर, मार कुटाई, पकड़ लो। और दूसरा जो आज जो सबसे खतरनाक चीजें सामने आ रही है जी, वो है कश्मीर से, और वहाँ पे शदीद लड़ाई हो रही है फौज की और पब्लिक जो है सड़कों पे, और बहुत ज्यादा लोग जान से जा चुके हैं। चीमा साहब, ये कश्मीरियों का क्या कसूर है? दोनों तरफ उनको मार पड़ रही है। देखिए, हमने 1971 से भी कुछ सबक नहीं सीखा। हमारी फौज के जर्नलों ने किसी किस्म का हर दौर के अंदर जो इन्होंने जुल्म किए, कोई इन्होंने सबक नहीं सीखा। इन्होंने मुल्क को दो टुकड़े किया, इन्होंने मुल्क का सबक नहीं सीखा, और ये मुल्क को मजीद तोड़ना चाहते हैं। असल बात ये चीमा साहब, ये तो गैरतमंद कौमों के लिए सबक होते ही है, जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने अंदर तब्दीली लानी। अभी आप काफी अच्छी बातें कर रहे थे कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये दूसरे लोग क्यों नहीं इस्तेमाल होते, मुसलमान ही क्यों इस्तेमाल हो रहे हर जगह पे जी? हाँ, ये तो बात है। ये मैं फिर मजहबी आ जाएगी बात, तो फिर कई लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि पहले भी जो बात करते हैं तो बड़ी लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि देखें ये मजहब के ऊपर तनकीद कर रहा है। तो मैं कहता हूँ, साफ कहता हूँ, सीधी बात है कि हम नाम के मुसलमान हैं, हम नहीं है मुसलमान। अगर हम मुसलमान होते तो हमारे अंदर इज्जत गैरत नाम की कुछ चीज होती। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं मुसलमान भी हूँ और फिर अपने आप को जो है ना वो सुबह से शाम तक जो है ना मैं खाने में भी डूबा हुआ पाऊं। ये नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है, दो रस्तों पे, दो किश्तियों पे सवार नहीं हो जा सकता कि मैं कहूँ मैं मॉडर्न भी बना रहा हूँ और फिर मुसलमान कह रहा हूँ, और काम भी वो सारे करूँ जो यूरोप वाले करते हैं, अमेरिका वाले करते हैं, दुनिया सारी जो फांसी के अड्डे खुले हुए हैं वो भी करूँ, और शराब भी पीऊँ, जुआ भी करूँ, और शराब भी करूँ, और फिर अपने आप को मुसलमान भी करूँ। तो असल में हम बेसिकली हम मुसलमान नहीं है, हम नाम के मुसलमान हैं। और मुनाफिक हम कह सकते हैं अपने आप को, ये मुनाफिकों का मुल्क है। डॉक्टर इसरार अहमद ने आज से बड़े अर्सा पहले कहा था कि दुनिया के अंदर एक झूठा और मकार और मुनाफिक अगर कोई कौम बसती है तो वो पाकिस्तानी कौम है, और इसी वजह से हम इस सवाल में शिकार हैं। ये अजाब हमारे ऊपर जो आया हुआ है इस खंजीर और कमीने हुक्मरानों की वजह से, वो सिर्फ इसी वजह से आया हुआ है कि हम नाम के मुसलमान हैं। हम भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और इसलिए हमारे ऊपर इस तरह के नहीं। जो चीमा साहब, इन चीजों का पता है, ये अभी आपने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया कि ये जो हुक्मरान है इनको पता है कि कोई झूठ और सच में फर्क का या कोई अच्छे और बुरे की तमीज का इनको पता है, या पता ही नहीं है? हो सकता है इनको पता ही ना हो इन चीजों का। नहीं, उनको सब पता है, वो भी तो खेल रहे हैं ना, वो भी उनके हाथों में खेल रहे हैं ना, उनको सब पता है। क्योंकि जो खिलौने हैं वो भी खिलौने बने हुए हैं, वो भी खेल रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो पढ़ने होती है ना, लाए गए हैं। कोई भी इस मुल्क के अंदर जो है ना वो नहीं आता बगैर उनकी मर्जी के। अच्छा जी, बड़ी सख्त छतरौल हो रही है वहाँ पंजाब से पुलिस जो गई थी, कुछ वीडियो हमारे सामने आई है, सही उन्होंने छपेड़े वहाँ मारी हैं, कई जगह पे पकड़े हुए भी पुलिस वाले, रेंजर्स वाले। चीमा साहब, ये बताइए कि कश्मीर वालों का क्या मुस्तकबिल है? इसी तरह उन बेचारों के साथ होता रहेगा? देखिए, मैं कश्मीर वालों का कसूर कोई नहीं है। असल में ये प्राण है ना मेरे, ये चाहते हैं, ये फसाद बर्पा करना चाहते हैं, ये फसादी है। ये किसी व्यक्ति को किसी को उस पर हकूक देने को तैयार नहीं है। बुनियादी हकूक जब इन्होंने खत्म किए हैं, तब
जुल्म ऐसा करेंगे तो असल में चाहते क्या है कि मुल्क में इसी तरह की अफरा-तफरी हो, इनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए और इनकी जो है ना वो इक़्तिदार को वो तूल मिलता रहे, दुनिया को दिखाए कि हम बड़े जो है ना वो मुसलमानों को हमने दबा के रखा हुआ है, और जो है ना वो जो भी होता है हम उसको जो है ना वो नेस्तनाबूद कर देते हैं, तो एक हमारा टैका है और हम जो है ना वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारा कुछ दिखावे के लिए सब कुछ हो रहा है। जितना ये जुल्म करेंगे उतना ही इनको शाबाश मिलेगी, क्योंकि शाबाश देने वाले ऊपर बैठे हुए हैं ना, इसीलिए क्योंकि जो इंडिया करता था उससे ज्यादा बदतर हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम इंडिया को इस बात की ये नजरबेशी दे रहे हैं कि तू जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और वो जो कश्मीर में उसने किया है वो ठीक किया है, हम इस बात को ठीक कर रहे हैं। बस यानी कि हमने तो इकरार कर दिया ना, हम तो उस बात पे एग्री हो गया है कि जो कुछ इंडिया कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और हमने इसे बदतर करके उससे मजीद दोगुना ऊपर करके उसको ये साबित दुनिया को कर दिया कि हम जो है ना इंडिया से भी बहुत बड़े जालिम हैं। ये जी मतलब अभी ये चाहते थे हम। ऐसी भी दुनिया में कौमें बसती हैं जिनका मजहब से कोई तल्लुक नहीं, वहाँ तो अदल इंसाफ चल रहा है, वहाँ तो इलेक्शन भी साफ शफाफ होते हैं, वहाँ पे तो लोग भी नहीं मरते इलेक्शन में। तो हर जगह पे हम ये मजहब को ले आते हैं और फिर मजहब के मुताबिक भी चलते हैं, दूसरों को हम कहते हैं जनाब ये ठीक नहीं जा रहे। और यही इस तबके ने असल में इस तबके ने जो अपनी हुक्मरानी कायम करनी है ना, ये जो जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसे हम फौजी जर्नैल, ये चंद एक जर्नैल ये जो ऊपर आते हैं फिर अपने आपको बड़े अकले कुल समझते हैं, ये इसी का फतूर है। ये समझते हैं कि अगर हमने इनको शौक दे दिया या हमने ये जुल्म खत्म कर दिया इस मुल्क के अंदर, तो फिर ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। जितना उन्होंने कब्जा किया हुआ है मुल्क के ऊपर पैसों के लेन देन का, मुआशी तौर पे, रोजगार तौर पे, और बड़े बड़े फंडिंग और डीएचए और प्लाट और ये वो प्लाजे, ये सारा कुछ उनका जो है ना खत्म हो जाएगा अगर वो थोड़ा सा भी अवाम को फूक देते हैं। तो फिर उनकी अपनी जो है ना वो जिसे कहते हैं बदमाशी, वो खत्म हो जाएगी। वो अपनी बदमाशी को कायम रखने के लिए ये सारा कुछ जो है ना वो किया जा रहा है, और पहले भी किया गया है और आइंदा भी किया जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को हर तरह बरतर साबित करने के लिए जो है ना वो सारा गेम खेल रहे हैं। तो उनके हाथ से ये निकल ना जाए, कहीं इस मुल्क में डेमोक्रेसी ना आ जाए, कहीं उस मुल्क में इंसानी हकूक जो है ना वो दोबारा अपने पांव पे खड़े ना हो जाए, इंसाफ ना मिलना शुरू हो जाए। तो अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो फिर इनकी तो गई ना। नहीं चीमा साहब, इंसाफ तो दूर दूर तक नजर नहीं आता पाकिस्तान में, तो तसव्वुर भी नहीं इंसाफ का, आप सोच भी नहीं सकते। दूर दूर तक मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि इंसाफ वहां पे आए। आपने अदल इंसाफ की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि बड़ी बात होगी अगर मुल्क कायम रहता है। अगर इसके हाथों से अभी जो डिक्टेटरशिप चल रही है, अगर इसके हाथों से मुल्क कायम रहता है तो ये मैं समझता हूँ बड़ी बात है। मैं तो समझता, आप कहते हैं कि दूर दूर आपको नजर नहीं आता, मुझे तो ये नजर नहीं आ रहा है कि ये मुल्क का वजूद भी कायम रहना कि नहीं रहना। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि बस हम जो है ना अच्छा जी, शायद खत्म होते जा रहे हैं। एक खबर शामिल कर लेते हैं, एक खबर शामिल कर लेते हैं। पुलिस मिलिट्री कश्मीरियों के घरों के अंदर घुसकर उनको तोड़ रही है। इसी तरह गिलगित के एरिया में भी ऐसी वीडियो देखने में आई और बहुत ज़्यादा तबाही मचाई जा रही है, दहशत फैलाई जा रही है। चीमा साहब आखिर पे ये बताइए कि अल्लाह की लाठी तो बेबाद है, मगर ये बंदे जाने वाले कोई नहीं इतनी जल्दी, आपको मैं बता देता हूँ। मैं एक और मैसेज में आ रहा है मेरे कि ये जो जितने भी बदमाशी कर रहा है कत्ल, ये असल में ना ये इसको भी ये मार्शल लगाने के लिए भी इसको लेजिटिमेसी चाहिए कि फोन उठाए और इसको जवाब मिल जाए और ये इक़्तिदार में काबिज हो जाए। मेरे ख्याल में एक और जो बात मेरे ज़हन में आ रही है ना वो ये है, अब पता नहीं ये इसके मेरे हिसाब से ये है कि ये जितना भी जुल्म कर रहा है ना, ये अपने आप को एक नए निज़ाम के लिए ऊपर ला रहा है कि मैं मार्शल लगा दूं, मैं मुकम्मल तौर पे अयूब खान की तरह जो है ना फील्ड मार्शल, वो जिस तरह सारा कुछ वो उसके कंट्रोल में था। तो ये मेरे ख्याल में मुल्क को उस तरफ लेना चाहता है। अवाम उठ नहीं रही, ये कोशिश कर रहा है कि अवाम उठे, मगर अवाम नहीं उठ रही। अब ये मेरे ख्याल में इसकी जो है ना आखिरी कोशिश है कि किसी तरह जुल्म करूँ और अवाम उठे, और अवाम उठे तो फिर मैं मार्शल लगा दूं, तो फिर अपने सारे कंट्रोल ये सारे को खत्म करके अपना मुकम्मल तौर पे खुले तौर पे जो मर्जी तरमीमें कर लूँ, इनके मिलते तले ना करूँ। मेरा ज़हन ये है कि ये चाहता है, ये ग्राउंड हम वार कर रहा है ये जुल्म करके, मैं मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे हर से कुल जो है ना वो ये है सूरत हाल मेरे साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
اچھا جی، بہت زیادہ حالات خراب ہوئے اس وقت کشمیر میں، اور بڑی شدید لڑائی ہے وہاں پہ چل رہی، اور الیکشن کا جو ڈرامہ کیا گیا سب فراڈ. ویسے میں تو کہتا ہوں ملک ہی فراڈ ہے، اور بنا بھی یہ فراڈ کے نام پہ تھا. یہ اے ٹو زیڈ وہاں پہ آپ دیکھ لیں وہی حالات چل رہے ہیں. میرے پروگرام دیکھے میں نے، اس میں آپ کو صاف بتایا کہ یہ ٹوٹل فراڈ. چینل کو سبسکرائب کریں.